Chuk 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 chuk. Yes, students, Exam Express is back for the revision of your final exams. Yes, and this is me, your social science teacher Kanchan ma'am, and I welcome you all to this session. Students, yes, स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर दैट इज टू से ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो यस स्टूडेंट्स, yes, we all know that Britishers, they ruled our country for more than 200 years. Yes, isn't it? And but वो क्या reasons थे basically, right? मतलब कोई और फॉरेनर एक तरीके से हमारी कंट्री में आ रहा है और फिर यहाँ पे आके सिर्फ ही इज नॉट विजिटिंग अस, रादर ही इज living here for so many years, and what all conditions were here that made that particular foreigner to be a ruler of our country. Yes, so ये सारे जो हमारे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, we'll get the answers in this particular chapter. Yes, but yes, ये जो चैप्टर है that is to say your British rule in India, क्योंकि ये 200 years से ज्यादा का है, तो देखो एक चैप्टर में तो कंप्लीट होगा नहीं, isn't it? Right? So yes, so basically जो ब्रिटिश रूल है, right, जो आपका ब्रिटिश रूल है in India, right, it is basically divided into two parts, right? It is basically divided into two parts. First is what? That is to say advent of the East India Company. Yes, the advent of East India Company, right? Yes, और कब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में? राइट, सो सी ऑफ कोर्स इनको जो परमिशन मिली थी अपनी गवर्नमेंट से इन इंग्लैंड, they had that in the year of 1600, but of course जब परमिशन मिली और फिर जब वो सेल करते 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 हमारी कंट्री तक आए तो 1608 हो गया. बट यस, स्टिल हिस्ट्री में जब हम ये पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स कब इंडिया में आए तो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1600 से, बिकॉज in 1600 only what happened, the East India Company, it got the permission from the then their monarch queen, that is to say Queen Elizabeth I, right? तो उनकी जो उस टाइम की क्वीन थी उन्होंने उन्हें तब परमिशन दी थी, that is to say in 1600, right? और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी कंट्री पर रूल किया till the revolt of 1857. yes, till the revolt of जो कि खत्म हुआ था 1858 में, right? So this is the time period of the rule done by East India Company on our country, right? जो सेकेंड फेज आता है ब्रिटिश रूल का वो होता है यहाँ पे, लाइक आफ्टर दिस 1858, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो ऐसा नहीं हुआ कि जो अब हमारी कंट्री जो है और हमारी कंट्री के मोनार्क्स जो हैं, रूलर्स हैं, प्रिंसेस हैं, दे ओनली स्टार्टेड रूलिंग आवर कंट्री. नो, व्हाट हैपेंड रादर, ईस्ट इंडिया कंपनी से रूल जो है वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज टू से डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ क्वीन हमारी कंट्री रूल में आ गई थी, राइट? हमारी कंट्री जो है डायरेक्ट रूल में आ गई थी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट? सो यहां से हम देखते हैं दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट it started ruling our country and the time period is basically 1858 से 1947 का. क्या हुआ था 1947 में? हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम ब्रिटिशर्स कंप्लीटली, राइट? यस, एंड ऑफ कोर्स बाइफर्केशन भी हो गया, डिवीजन भी हो गया हमारी कंट्री का, राइट? यस, तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो we'll be doing this part, the first part, right? We'll be doing this part, and yes, in the next we'll be doing with the British Parliament rule in our country, right? और इस टाइम पर आप देखोगे बहुत सारी लड़ाई हुई, इट्स ऑल फुल ऑफ फाइट्स, इट्स ऑल फुल ऑफ लाइक एक्शन. यस, जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो बिल्कुल भी क्या आ गए थे एकदम, दे बिकम लाइक वॉरियर्स. यस, दे बिकम वॉरियर्स ओवर हियर, राइट? So yes, we learn about the freedom fighters, right, and all that. But yes, in the next video for this second part. But yes, यहाँ पे basically we look into that what were the reasons actually, right? What were the reasons that made
what were the reasons that made East India Company to come to this part of the world, right? To come to this part of the world. So what were those reasons? Why India was so much important? What was the importance of India as such, right? So yes, these reasons, right, we will learn about. That is to say, importance of India, हमारी प्यारी भारत माता, राइट. सो यस, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि. यस, इसी के साथ नेक्स्ट व्हाट एल्स वी विल सी, दैट सी हाउ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी. अब देखो, नाम से तो पता चल रहा है ना कि ये कोई कंपनी है. कंपनी क्या करती है? रूल करती है? नहीं. क्या करती है कंपनी? कंपनी तो बिजनेस करती है, इजंट इट? या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी या फिर क्या करती है? मर्केंटाइल बिजनेस. मर्केंटाइल बिजनेस मतलब ट्रेड करना. ट्रेड करना मतलब एक जगह से खरीदना, दूसरी जगह पर बेचना, राइट? बाइंग फ्रॉम वन प्लेस एंड सेलिंग इट टू दी अदर प्लेस, राइट? ओके. सो ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी क्या थी? इट वॉज ऑल्सो डूइंग वॉट? मर्केंटाइल बिजनेस. इट वॉज ऑल्सो डूइंग वॉट? मर्केंटाइल बिजनेस, राइट? सो यस, सो द रीजन, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमारी कंट्री की क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे. उसके बाद ये मर्केंटाइल बिजनेस करने आई थी, सर ट्रेड करने आई थी, फिर क्या हो गया अचानक से यहाँ पर? लाइक व्हाट ऑल रीजंस वर देयर, लाइक व्हाट ऑल मींस व्हाट वर द कंडीशंस हियर, राइट? लेट जस्ट पुट इट हियर लाइक कंडीशंस. यहाँ पे कोई तो कंडीशंस होंगी ना जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने फायदा उठा दिया, isn't it? He took the advantage of those conditions and became the ruler of our country. Right? So yes, we'll look into that also. And yes, starting में तो बहुत धीरे धीरे, slowly they entered, they intruded into our country and country's administration also, right? धीरे 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 वो हमारी कंट्री का पार्ट बनते चले गए. कौन? ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? और फिर ग्रेजुअली क्या हुआ? ऑफ कोर्स यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन हुआ. वॉर्स इवन हैपेंड हेयर ऑल्सो, राइट? यहाँ पर भी हमारी कुछ वॉर्स हुई. इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वॉर्स है? लाइक वी हैव बैटल ऑफ प्लासी, राइट? बैटल ऑफ प्लासी इज देयर, राइट? इसी के साथ देयर इज बैटल ऑफ बक्सर ऑल्सो. बैटल ऑफ बक्सर भी हुई, राइट? एंड यस, फिर घमासान वाला युद्ध हुआ. कौन सा? द रिवोल्ट ऑफ 1857. यस, और जिसकी वजह से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया छुटकारा, राइट? और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दुम दबा के भागना पड़ा. बट यस, because we people were still innocent, we were still naive enough like to not understand the actual you can say intentions, yes, actual intentions of the Britishers, right? So ईस्ट इंडिया कंपनी गई तो हम खुश हो गए, अरे वाह, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, लेकिन ओवरकम लाइक दे टुक ओवर आवर कंट्री एज द रूलर, राइट? और फिर ग्रेजुअली ऑफ कोर्स क्या हुआ वो तो सेकेंड पार्ट में देख ही लेंगे, right? So yes, so this is about this part. So yes, I hope a small gist कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, है ना? कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, how they came to our country, why, what is the reason why our country was so much famous at that time. कुछ तो रीजन होगा कि ये लोग इतना दूर दूर से हमारे यहाँ कंट्री में आए, राइट? और फिर आए और बस भी गए, यहाँ पर वो रहने भी लग गए. they even started ruling our country, right? सो यस, एंड यस, मूव फर्दर व्हाट वी विल सी कि क्या कंडीशंस बाद में उनको दिखी जिसकी वजह से वो हमारी कंट्री के रूलर बनने लग गए, राइट? एंड ऑफ कोर्स हमारे लोगों ने भी क्या किया? द नवाब्स हियर, द पीपल हियर, दे रिवोल्टेड, यस, इन डिफरेंट डिफरेंट बैटल फॉर्म्स. so we will be discussing the main battles over here. okay, so yes, so this is about this one. चलो तो चलते हैं आगे की तरफ. सो सी, दिस इज द टाइम लाइन दैट वी विल बी गोइंग थ्रू, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम 1600. तो देखो 1600 में बेसिकली हुआ क्या, what actually happened in 1600. So see, 1600, 31st of December, right? 31st of December 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला. चार्टर मतलब क्या? चाड़ा नहीं चार्टर मिला, दैट इज टू से परमिशन मिली, ठीक है, राइट? सी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं. आप मुझे एक बात बताओ, कैन यू गो आउट ऑफ योर क्लास विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम योर टीचर, whoever is present there?
Of course, I assume that your answer would be no. No, ma'am. Like, we cannot go out of the class without taking permission, isn't it? Similarly, when some people are there in a country, right, and they want to do business, right, they want to like work in the economy of the country as such, right, तो अगर हमें भी हमारे देश से बाहर जाना है या किसी देश में एंट्री लेनी है तो हमें परमिशन चाहिए होगी, isn't it? Right? So yes, this happens today also whenever we are going out of India. जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं foreign and all, वीजा लेना पड़ता है, like we need some permission, we need tickets and all, right? These are what, these are kind of form of permissions only, right? So similarly यहाँ पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको चार्टर मिला. चार्टर क्या है? इट्स अ परमिशन. ठीक है, स्पेलिंग देख लो चार्टर की. चार्टर की स्पेलिंग क्या है? CHARTER, right? That means what? It's a permission, right? In simple terms, अगर हम बोले in simple terms, like it's a kind of legal authority or legal permission, you can say, right? In very lay and in very easy terminology, we can understand this word as like this. तो चार्टर क्या था? एक परमिशन थी, एक लीगल परमिशन थी, जो कि उस टाइम की क्वीन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने दी ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर्स को कि यस, यू कैन गो एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड यू कैन डू ट्रेड ओवर देयर विथ मोनोपोली राइट्स. क्या हुआ? मोनोपोली राइट्स वर देयर, राइट? अच्छा, अब ये मोनोपोली राइट्स क्या हो गए भाई? ठीक है, अब ये मोनोपोली राइट कहां से आ गए हैं? तो यस, मोनोपोली राइट्स क्या होता है? मोनोपोली इज व्हाट? इट्स अगेन अ मार्केट सिचुएशन. मार्केट क्या होता है? जहां पे हम जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं. सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कोई डॉक्टर है, मेडिकल है, राइट? और वी आर गोइंग टू एनी शॉप, वी आर बाइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, मे बी लाइक वी आर बाइंग व्हाट, लेट्स से वी आर बाइंग स्टेशनरी प्रोडक्ट्स और वी आर बाइंग बुक्स, और हम कपड़े लेने जा रहे हैं, शूज लेने जा रहे हैं, राइट? सो मार्केट इज दैट प्लेस, राइट? वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन है कि केवल एक ही दुकान है, देयर इज ओनली वन शॉप, राइट, एंड दैट शॉप इज ओनली डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स, राइट, एंड देयर इज नो अदर शॉप नियर बाय इट, राइट? उसके आसपास कोई और शॉप नहीं है, बस उसी शॉप से आप ले सकते हो और कहीं से नहीं ले सकते. सो दैट मीन्स व्हाट? दैट इज लाइक मोनोपोली, राइट? मोनोपोली मतलब केवल एक ही सेलर इज देयर. अब एक सेलर होगा तो क्या होगा? जो लोग हैं उन्हें केवल और केवल उसी शॉप पर जाना पड़ेगा, किसी और शॉप पर तो जा नहीं सकते, isn't it? If they will go, means of course there is no shop where to go, right? And जो भी शॉपकीपर प्राइस बोलेगा, the buyer, he has to take the product on this particular price only, isn't it? Right? अभी तो क्या होता है, हम मार्केट जाते हैं, अरे भैया बहुत ज्यादा लगा रहे हो, कोई बात नहीं, वो तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो तो 50 रुपीज में दे रहा था, आप तो 75 ज्यादा ले रहे हो, हम जा रहे हैं, सही लगा रहे हो तो लगाओ, राइट? सो वी डू लाइक दिस. सो क्या होता है हमारी, लाइक वी नेगोशिएट द प्राइस एंड वी गेट द प्रोडक्ट, राइट? यहाँ पे क्या हुआ? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से बेसिकली दे गॉट द मोनोपोली. मोनोपोली मतलब अब इंग्लैंड से कोई और नहीं आएगा टू डू ट्रेड in this part of the world, right? Now nobody will come on this part of the world because Queen Elizabeth, the then Queen Elizabeth, she approved through the charter that yes, East India Company will have the monopoly rights to do trade where? In India basically, in Asia part. Asia में भी कौन सा? East and Southeast Asia, right? So yes, so this is about this. तो यहाँ पर हुई ये चीज, ठीक है? और जब ये परमिशन मिल गई तो देयर वाज लाइक बल्ले बल्ले सिचुएशन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी. दे थॉट कि चलो अब तो चलते हैं. तो यस, वो लोग निकल पड़े अपना. दे वर लाइक रो योर बोट, राइट? सो दे वर रोइंग देयर बोट, दे वर सेलिंग कंटिन्यूअसली फॉर लाइक 8 years, right? For 8 years, and finally in 1608, right? In 1608 they arrived at सूरत पोर्ट. कहाँ आ गए वो? सूरत पोर्ट में आ गए. कहाँ आ गए? सूरत पोर्ट आ गए, राइट? सो यस. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखते हैं कि वाई ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर कंपनीज एट दैट टाइम दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन आवर कंट्री. उस वक्त क्यों वो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे?
right? So there must be something. So see, India, it was world famous at that time. हमारी कंट्री जो थी वर्ल्ड फेमस थी, किसके लिए? वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। वेल्थ किस फॉर्म में? बिकॉज वी वर हैविंग रिसोर्सेस, हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेस थे। रिसोर्सेस क्या? नेचुरल रिसोर्सेस, राइट? वी वर गुड इन दैट। एंड साइमल्टेनियसली इसी के साथ ही आप देखोगे, let me put it here, like India was good with some of the agricultural products, ठीक है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में स्पाइसेस हो गए, राइट? वी वर हैविंग स्पाइसेस, राइट? वी वर हैविंग, ये रे देखो, वी वर हैविंग स्पाइसेस, ठीक है? इसी के साथ कॉटन, कॉटन के लिए भी बड़ा फेमस था हमारा कंट्री, ठीक है? हमारी जो प्रिंटिंग वगैरह हो रही थी एंड ऑल, प्रिंटिंग मतलब दैट इज टू से लाइक एम्ब्रॉयडरीज पार्ट एंड ऑल क्लॉथ पे, राइट? सो दैट वाज आल्सो फेमस, राइट? सो एंड यस, हमारी कंट्री का आप देखोगे हेरिटेज या कल्चर, दैट इज टू से लाइक हमारे इधर जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहे थे, बने हुए थे एंड ऑल। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, व्हाट वाज दैट, लेट मी टेल यू, उस टाइम पीरियड में ड्यूरिंग दिस 1600 1700s एंड ऑल, आर कंट्री एंड यस चाइना ऑल्सो, एशिया जो है ना, एशिया एक कॉन्टिनेंट है। एट प्रेजेंट आप देखोगे अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, लाइक इट्स लाइक द डेवलप्ड वन, इट इज लाइक द रिचेस्ट वन, राइट? उस टाइम पर एशिया, एक तो एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट भी है एंड इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा रिच भी था, राइट? रिच भी था एंड पीपल लाइक दे वर वेरी मच फैसिनेटेड, दे वर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज टू से एशिया पार्ट, राइट? दैट इज टू से एशिया पार्ट, राइट? तो एशिया की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे। सो दिस वाज द रीजन कि हमारी कंट्री जो थी फेमस थी रिसोर्सेस के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, राइट? इसी के साथ हमारा जो हेरिटेज लाइक मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारा रूल है यहाँ पे, लाइक रूलर यहाँ, जैसे वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन भी क्या, इंडियन सिविलाइजेशन भी आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। सो ऑफ कोर्स दैट फेम वाज आल्सो प्रिवेलिंग एट दैट टाइम अराउंड द वर्ल्ड, ओके, राइट? सो यस, दैट वाज द थिंग। इसी के साथ ही बिकॉज ऑफ दीज रिच रिसोर्सेज, चलो एक तो है कि कोई कंट्री फेमस है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, but simultaneously what was happening, other people they were also coming to our country, like Arabs, Greeks, Romans, Arabs हमें पता है, like Mughals and all, they established their rule in our country, right? Iranian people, they came to our country, right, for ruling purpose only. Even first European who came to our country for like through his voyage and all, and to do like for exploring this part of the land, this part of the world, वो कौन थे हमारे? Who was that person? So yes, he was Vasco da Gama. He was Vasco da Gama. He was the Portuguese, right? He was Portuguese and he came to our country first day in 1498. He discovered the sea route, right? उन्होंने sea route discover किया था। एंड इसके बाद बहुत सारे यूरोपियन पावर्स जो हैं वो आ रहे थे यहाँ पे। लास्ट वन वाज द लाइक फ्रेंच, बट यस इन द मिड लाइक डच वर देयर, ब्रिटिशर्स दे आल्सो केम। सो यस, ऐसा होता है ना, जब अगर कोई चीज, जब सब किसी भीड़ की तरफ जा रहे होते हैं तो सब आते हैं कि अरे वहां पे क्या है, देख कर आए, right? So of course our country was famous for its resources, agricultural products and all, but simultaneously there was also a kind of very good reputation our country has, and because of that so many people from the outside world, Europeans, Arabs, Greeks, Romans, they used to come and visit our country. Chinese, Japanese, and also these people also. And our country has what? It's a very dominating position. It has dominating position in on Indian Ocean, right? तो हमारी कंट्री क्या है, बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है? तो अब इंग्लैंड पीछे कैसे रह सकता था, isn't it? उसको भी चाहिए था, he also wants to be the part of this. फोमो हो रहा था उसे कि अरे कोई वहां से ज्यादा पैसा ना कमा ले, I should be there, I should be the one, right? And East India Company ne took advantage of this thing and he came here with that charter with the permission of the Queen Elizabeth I, right? Yes, so this is how they came to our country, right? जो western countries थी, western मतलब we are talking about European countries, European countries थी, they interested in developing trade with India, वो भी यहाँ पर business करना चाहते थे, राइट? वो भी यहाँ पर बिजनेस करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है? लेट मी अगेन रिपीट द थिंग अबाउट ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? बाइंग फ्रॉम वन प्लेस, बाय करना एक जगह से, बाइंग फ्रॉम
वन प्लेस एंड देन सेल करना, सेलिंग एट अदर प्लेस, ठीक है, सेलिंग एट अदर प्लेस, सेलिंग एट अदर प्लेस, राइट। सो दिस इज अबाउट ट्रेड थिंग। तो ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे यही करने आए थे। वो भी क्या सोच के आए थे कि यहाँ से यहाँ के मसाले, कॉटन का कपड़ा, ये सब यहाँ से लेकर जाएंगे और इंग्लैंड में बढ़िया अच्छे दाम में इसको सेल आउट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, दे केम टू आवर कंट्री एंड दे अराइव्ड एट आवर कंट्री वेयर एट सूरत पोर्ट। सूरत में आए थे वो, ठीक है, सूरत, क्योंकि गुजरात की तरफ से आए, राइट। वहां पे सूरत में सबसे पहले इन्होंने लैंड किया। एंड ऐसा नहीं है कि आते ही लाइक वो करना, उन्होंने लाइक अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया, नो। फर्स्ट दे केम, दे ऑब्जर्व द सिनेरियो, दे लुक्ड एवरीवेयर इन द मार्केट बेसिकली कि कौन कौन है। दे जस्ट गॉट बैफल्ड एट दैट टाइम। बैफल क्यों हो गए एकदम से चौक करना क्यों हो गए? बिकॉज दे लर्न दैट अरे यहाँ पे तो ऑलरेडी इतना सारा कॉम्पिटिशन है, हम इंग्लैंड से तो जीत कर आ गए कि वी शुड बी हैविंग द मोनोपोली राइट्स टू डू ट्रेड इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया पार्ट, राइट, इन इंडिया बेसिकली। सो वी शुड बी द वन टू डू ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड। बट बाकी सबको तो नहीं रोक सकते, फ्रांस को, नीदरलैंड्स को, आपका पोर्चुगीज एंड ऑल, ये सारे लोग जो है आए यहाँ पर, है ही सही स्पेनिश कॉन्करर्स एंड ऑल। सो दीज पीपल दे आर देयर, सो दे थॉट कि यार अब क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दे वर जस्ट ऑब्जर्विंग फर्स्टली कि व्हाट इज टू बी डन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बहुत चाहिए हमें, वी नीड मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। सो व्हेन दे अराइव्ड इन 1608, सो एट दैट टाइम ऑफ कोर्स आते ही अगर हम, वेन एवर यू वॉन्ट टू एंटर इन अ क्लास, what will you do? You take permission from your teacher, isn't it? Then only you can enter the class, isn't it? So similarly they landed at the seaport, seaport पे आए वो, ठीक है, जहाज से आए थे ना, सीपोर्ट पे आके रुके। बट दे कैन नॉट गो फर्दर, कैन नॉट एंटर बियॉन्ड द पर्टिकुलर, लाइक बियॉन्ड द टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। वो एक लेवल के बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है। इफ देयर इज अ पोर्ट दे कैन बी देयर विद इन द पोर्ट, बट दे कैन नॉट गो इनटू द सिटी until and unless they have the permission, and they cannot perform trade also until and unless they have the permission, right। 1608 में we have जहांगीर, यहाँ पर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर थे जहांगीर थे, राइट। सो ईस्ट इंडिया कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम द रूलर ओवर हियर कि हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, राइट, एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग। देन फिर उन्होंने यहाँ पे लाइक अपना बिजनेस एंड ऑल वो करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, ठीक है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी लगाई, राइट, इन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाई सबसे पहले, राइट, सूरत में स्टैब्लिश किया। बट सी, लेट मी हियर टेल यू, जो the thing that we need to focus in historical part of East India Company is this, that जो फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश की थी इन बंगाल, राइट, जो उन्होंने बंगाल में स्टैब्लिश की, आफ्टर दैट दे could start going for the administrative rule, they could start their administrative rule, right। so इसीलिए wherever you will find that where English the East India Company they started their first factory, so you will always find this answer in 1651 in Bengal near the river Hooghly, right, near the river Hooghly। अब ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ ना, these are the questions only that you will be getting your in your exams। कौन सी कहाँ कैसे आई ईस्ट इंडिया कंपनी? सो दे गॉट चार्टर फ्रॉम द देन क्वीन एलिजाबेथ वन, सो फ्रॉम दैट दे गॉट द मोनोपोली राइट्स टू ट्रेड इन इंडिया, राइट। सो दिस इज हाउ दे पीपल केम टू आवर कंट्री। कहाँ पे किससे मिले आते ही? जहांगीर से परमिशन ली, right। moving further, which East India means where East India Company established their first factory? So in 1651 they established their first factory in Bengal near the river Hooghly, right। so this is your complete answer, ठीक है। 1651 में इन्होंने अपनी पहली स्टैब्लिश कर दी फैक्ट्री, ठीक है, राइट। सो यस, है ना, हिस्ट्री को ध्यान से समझो। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वी ओनली फोकस ऑन दोज डेट्स, ठीक है। ऐसे तो ऑफकोर्स सूरत में आए थे तो पहले वहां स्टैब्लिश किया, बट दैट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेलेवेंस फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। वहां से कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ सूरत से, बंगाल से हुआ, तो इसीलिए वी लुक इनटू द पार्ट ऑफ बंगाल ओनली, ओके। सो यस, सो दिस इज द थिंग, सो दिस इज द पार्ट, राइट। 1651 के बाद क्या हुआ? अब देखो उनका मेन मोटिव क्या था, व्हाट वाज द मोटिव, व्हाट वाज द मोटिव
for the East India Company, it was always to maximize profits, right? To maximize profits, की हमें बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाना है हमें, we want to earn so much, है ना? Like the like Donald Duck, right? So yes, Donald Duck is the one, no? नहीं, Uncle Scrooge, yes. So that kind of money they wanted. They wanted to be like that Uncle Scrooge. Yes, richy rich. So yes, so that was their aim. So now they started thinking, yo, क्या करना चाहिए, पैसा कमाना है, increase करना है profit. अभी तो क्या हो रहा है, right? What is happening now? Like what is happening while trading? So see, East India Company, what is happening? They are purchasing goods. So see, initially when they entered our countries, they found so much of competition from French, from Portuguese, from Dutch people. So many were there, right? So of course, अब इस टाइम पर पलड़ा किसका भारी है? इंडियंस का. So they used to see कि अच्छा कौन मुझे ज्यादा प्राइस दे रहा है. Like there is an agriculture, like there is a farmer जिसने कॉटन ग्रो किया, right? Now he will see कि कौन मुझे बहुत बढ़िया प्राइस देगा. So he sell the product to that person, right? तो अपना वो प्रोडक्ट उसको सेल आउट कर देता था. Fine. So Indians, they were like in a win-win situation. They were really happy. Now East India Company, basically Britishers, they thought कि अरे ये क्या हो रहा है, how to maximize profit, क्या करें क्या करें क्या करें. They thought about it and finally they come up with an idea in 1667, right? They came up with the idea in 1667 कि क्या करना चाहिए भाई, लेट्स टेक, लाइक उन्होंने ब्राइब भी किया, ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल लाइक बहुत शरीफ थे, दे वर लाइक ऑनेस्ट एंड ऑल, इट नॉट लाइक दैट, दे ब्राइब्ड द मुगल एम्परर औरंगजेब, राइट? जो मुगल एम्परर हैं, मुगल एम्परर जो है औरंगजेब, राइट? औरंगजेब जो है, राइट, व्हाट दे डिड, दे ब्राइब्ड हिम. ब्राइब्ड मतलब रिश्वत, राइट? उनको कर दिया ब्राइब किया. एंड आस्क्ड देम टू गिव अस फरमान. अब ये फरमान क्या है? ये हिंदी वाला चार्टर है. चार्टर का मतलब क्या था? लीगल परमिशन, लीगल अथॉरिटी. उसी तरीके से जब आप इंडिया में आए तो चार्टर जो मिलता है वो फरमान. सो दैट वर्ड इज फरमान ओवर हियर, राइट? तो क्या मिला यहाँ पे? फरमान लिया उन्होंने. फरमान, फरमान इज अगेन व्हाट? लीगल ऑर्डर, राइट? और ऑर्डर फ्रॉम द किंग, permission from the king, right? Yes, so this is what, this is like permission from king. Okay. और उस वक्त किंग कौन थे आपके? एम्परर कौन थे? औरंगजेब थे. तो परमिशन फ्रॉम किंग, डायरेक्टली परमिशन ले ली कि भाई. और फरमान क्या था? व्हाट वाज दैट फरमान? तो फरमान वाज लाइक दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कैन ट्रेड without paying taxes, ठीक है? बिना टैक्स पे किए वो अपना क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो टैक्सेस, दैट इज टू से, इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी बोले तो ड्यूटी फ्री, दैट इज टू से दे कैन ट्रेड ड्यूटी फ्री. ड्यूटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ड लाइक विच इज यूज्ड लाइक इन अ सेंस ऑफ टैक्स ओनली, ठीक है, राइट? सो यस, तो जो ये टैक्स है इन अ वे उन्होंने परमिशन ली कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सके, राइट? नाउ व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट, राइट? व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? तो उनका जो कॉस्ट है वो कम हो गया. किनका? ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का. सी, लेट मी हियर गिव यू अ ब्रीफ जिस्ट कि बिजनेस में होता क्या है बेसिकली, लाइक व्हाट हैपेंस इन अ बिजनेस. सो सी, इन बिजनेस लेट्स से फॉर एग्जांपल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल, राइट? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल इज डन. मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम पेंसिल की, है ना? ठीक है, शकला का बुम बुम वाली पेंसिल. सो यस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल इज टू बी डन, राइट? अब देखो, पेंसिल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? सोचो सोचो सोचो, थिंक योर ब्रेन, थिंक इन योर ब्रेन. यस यस यस, वेरी करेक्ट. सो यस, वी नीड सम रॉ मटेरियल. हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है?
ग्रेफाइट चाहिए क्योंकि अंदर का वो क्या होना चाहिए, लाइक लेड चाहिए, मतलब जो अंदर लिखने के काम आएगा, तो वो मटेरियल चाहिए, वी नीड दैट, राइट। रॉ मटेरियल, उसको कवर जिससे करेंगे दैट मटेरियल वी नीड। प्रिंट करेंगे नटराज या जो भी पेंसिल्स आजकल यू यूजिंग डोम्स एंड ऑल, तो दैट नीड्स टू बी डन, राइट। तो रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, उसको हम प्रोसेस करेंगे, so process needs to be done। इस प्रोसेस में हो सकता है some electricity to be used, right, some electricity to be used, some water to be used, कुछ पानी यूज हो रहा है, ठीक है, and the like some more stuff, right। तो these are the thing, space जहां पर होगा, तो फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का स्पेस इज ऑल्सो देयर, राइट। नाउ व्हाट्स हैपनिंग लाइक, लेट जस्ट टेक द एग्जांपल कि बहुत सारी ऐसे तो हमें पेंसिल्स बनानी है, बट एक पेंसिल लेते हैं, राइट। तो अगर एक पेंसिल को बनाने में लेट्स से यहाँ पे द रॉ मटेरियल इट कॉस्ट से 2 रुपीज, 2 रुपीज का कॉस्ट लगा फॉर रॉ मटेरियल, फॉर ऑल दीज थिंग्स 1 1 1 रुपीज, सो दिस इज योर 3 रुपीज, ठीक है। एंड फाइनली कितने रुपए में हमारी पेंसिल बन गई, इन हाउ मच मनी लाइक वी कुड मेक आर पेंसिल, सो ऑफ कोर्स इट्स ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज में कर दी, बना दी हमने पेंसिल 5 रुपीज में। अब बताओ ये तो क्या हो गई, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि भाई कितने में हमने उसे पूरा बनाया, ठीक है। बट यस ये तो क्या है, इसका हमने लाइक वी जस्ट कैलकुलेटेड दिस पार्ट। इसमें अब जो बिजनेस करता है उसको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है, देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, फाइन। सो लेट जस्ट मेक इट कि चलो उसको 8 रुपए लग गए, कितने लग गए, 8 रुपए लग गए, ठीक है। अब आप सोचो, जस्ट इमेजिन कितने में द पर्सन विल सेल इट, इन हाउ मच मनी द पर्सन विल सेल द अमाउंट, सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एटलीस्ट 9 और 10, है ना, है ना, एटलीस्ट अगर प्रॉफिट चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो 8 से, चलो ठीक है, एट पार कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। बट yes of course selling price will always be tried to be what, it needs to be like of course 9 or 10, so let's say 10 rupees, तो प्रॉफिट आया 2 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट कहाँ क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टू से 2 रुपीज, दैट विल बी द प्रॉफिट, कितने का बनाया और कितने का हमने लाइक हाउ मच मनी वी स्पेंट इन द प्रोडक्शन और इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंसिल, तो वो तो दैट अमाउंट हैज गॉन, एंड हाउ मच वी आर गेटिंग, isn't it। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो दे ट्राई टू सेव लाइक जो 5, अब देखो अगर मान के चलो यहाँ टैक्स वैक्स कुछ नहीं होता, देर इज नो टैक्स, देर इज नो ड्यूटीज, देर इज नथिंग एल्स, तो पेंसिल कितने में बन जाती, फिर पेंसिल कितने में बन जाती, ₹5 में। अब बताओ, अब अगर वो 10 रुपीज में बेचते या चलो 9 रुपीज में भी बेचते, तो कितना प्रॉफिट होता, 4 रुपीज का, एंड हियर इट वॉज ओनली 2 रुपीज। नाउ यू आर गेटिंग द डिफरेंस, वाई दे वर आस्क्ड, वाई दे वर आफ्टर for having the like for to maximize their profits, so for that they were trying to minimize their cost, तो वो अपनी cost को कम करने की कोशिश कर रहे थे, fine। So because of that what they did, they bribed the then Mughal emperor, राइट। उन्होंने उस टाइम के मुगल एम्पर को ब्राइब किया और उसे फरमान लिया कि भाई हमें टैक्स नहीं पे करने का फरमान दे दो, ठीक है, हमें परमिशन दे दो, फाइन। सो यस मुगल एम्पर ने बोला ठीक है, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मुझे दुनिया का क्या करना है बाकी, ठीक है, आई गॉट माई मनी, आई गॉट माई ब्राइब, go ahead you can trade duty free, now I'm not concerned, now I'm not concerned, right। so that was the thing that happened, ठीक है। और ये कब मिला, 1667 में, 1667 में मुगल एम्पर ने फरमान दे दिया टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फाइन। सो दिस हैपेंड, राइट। एंड इसी के साथ ही नाउ सी 1651 में we know what happened, there was the establishment of factory, right, establishment of factory was there, ठीक है, in Bengal near the river Hooghly, 1667 में फरमान ले लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। now what's happening basically, like for example see, for example this is the Bengal, यहाँ पर बंगाल में फैक्ट्री लगा दी भाई 1651 में, ठीक है, 1651 में देर इज फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री लगा दी, राइट। लेट मी राइट इट लाइक दिस, ओके। सो यस established factory,
ठीक है, कहाँ पे? इन बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर का नाम जरूर पूछेंगे, विच वॉज दैट रिवर? सो नियर रिवर हुगली, नियर रिवर Hooghly. That's why I'm again and again repeating this part, right? So yes, right. You can write Hughli also, Hooghli, like that is also fine, fine. So yes, अब देखो फैक्ट्री लगा दी, जैसे मतलब एक ये फैक्ट्री लगा दी हमने, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज योर फैक्ट्री, ठीक है, घर जैसी है, बट यस अज्यूम दैट दिस इज योर फैक्ट्री, ठीक है। अब इस फैक्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काम करते रहेंगे, कहाँ वो, ठीक है, तो इसके आसपास क्या करने लग गए, रहने की जगह बनाने लग गए। तो बाय 1696, ठीक है, 1667 में तो फरमान मिला था, ठीक है, एंड 1696 से लेकर के क्या कर रहे हैं, लाइक टिल दैट टाइम स्टैब्लिशमेंट स्टार्टेड, मींस स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अराउंड दिस फैक्ट्री, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्ट एस्टैब्लिशमेंट। सो 1696 में कंपनी, कंपनी मतलब ऑफ कोर्स कंपनी नहीं, बट उसमें जो रह रहे हैं लोग, राइट। सो द पीपल ऑफ दिस ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, राइट। जो वहां पे एरिया है, तो वो एक तरीके से अपनी टेरिटोरी मार्क करने लग गए कि दिस इज आर एरिया नाउ, ठीक है, दिस इज आर एरिया। सो इन अ वे इन बंगाल दे ट्राइड टू डिस्टर्ब द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन वन वे, दिस इज द फर्स्ट वे, दूसरा भी बताती हूँ। तो दिस इज फर्स्ट वन ऑफ द वेज कि कंपनी क्या कर रही है, अपना डोमिनेंस कर रही है, अपना टेरिटोरी स्टैब्लिश कर रही है, फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट वे, ओके। अनदर पार्ट इज व्हाट, दैट इज टू से there were, like you will find what, because of this construction of fort settlement, right, and जो वो फरमान मिला था 1667 में, ईस्ट इंडिया कंपनी was free to pay any kind of duties or pay any kind of taxes to the emperor, to the emperor, right, but the fort is established where, in the Bengal area, बंगाल में है, isn't it? और बाकी जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं वो अपना पर्सनल ट्रेड भी कर रहे थे, दे वर डूइंग देयर प्राइवेट और पर्सनल बिजनेस आल्सो, फाइन। तो वहां के जो नवाब थे, लाइक मुर्शिद कुली खान, राइट, ही वाज द नवाब फ्रॉम 1717 till 27, so this nawab was there. After his death some more came, then in the at the fourth place, like Alivardi Khan, he came into existence, ये ruler बने, right, he became this he became the nawab, nawab बोलते हैं जो ruler थे बंगाल के, that is given the designation of being nawab, right। So yes, he became 1740 से 1756 April 1756, right। So he became that. Finally, Sirajuddaulah was the last one. Sirajuddaulah was the last one. After his death, his grandson, that is to say, Alivardi Khan के जो grandson थे, Sirajuddaulah, he became the Nawab of Bengal, right? 1756 April से लेके सिर्फ 1757 तक he was there. उसके बाद क्या हुआ अभी देखेंगे, राइट। सो दिस वाज द थिंग, फाइन। एंड ऑल दीज रूलर्स, जो भी ये नवाब आए, जो ये रूलर्स आए, सबको ये दिक्कत थी दैट ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, दे आर नॉट पेइंग टैक्सेस, वो टैक्स पे नहीं कर रहे। और ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती हमें तो फरमान मिला हुआ है, हमें तो फरमान मिला हुआ है, ठीक है, ओके, राइट। एंड जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको तो फरमान नहीं मिला था, they were not given the farman, they were not given the orders, or they were not given the permission to trade duty free, right। So these people, they were saying that they should pay the tax, उनको थोड़ी ना मिला है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है, ठीक है। आप जो पर्सनल और प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो उसका पैसा तो दो, बट यू आर नॉट पेइंग दैट ऑल्सो, you are misusing that farman. So there was tussle, there was conflict related to that part, right। This is the second part. First हमने क्या देखा कि जो ये the establishment they were building, right, the establishment they were having, because of this conflicts were happening, there was a disturbance, right, because of this what was happening, there was disturbance in the administration, in the administration of Bengal area, so this was like one reason, administration of Bengal region,
right? So this was first reason, that there was tussle, there was conflict between Nawab and East India Company. Second one is what, that is to say they were not paying revenues. East India Company officials, right, East India Company officials, they were misusing the फरमान, वो मिसयूज कर रहे थे, देवर मिस यूजिंग द फरमान, वो फरमान का मिस यूज कर रहे थे बाय not paying taxes, by not paying duties, or by not paying taxes, by not paying taxes for their for their personal for their personal trade also, राइट, उनका जो अपना पर्सनल ट्रेड बिजनेस चल रहा था उसमें भी नहीं पे कर रहे थे, राइट. सो यस, लेट मी राइट 1 and 2 here. So these were the reasons basically because of which there was tussle happening between Nawab and the East India Company. ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ तो गई बंगाल में, स्टैब्लिश भी कर लिया, फरमान भी ले लिया, बट अब लड़ाई चल रही है बंगाल में. ठीक है, किसके बीच में, नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, राइट. सो दे वर हैविंग फाइट between them. Okay, so yes, so this is what was happening. So because of this there was intense conflict हो रहा है between company and the nawab for for payment of taxes. मतलब वो पे नहीं कर रहे, so they were saying पे करो, right. और इसी के साथ वो अपनी टेरिटोरी मार्क कर रहे हैं बैठ के, right. They were having they were establishing their fort settlement and all, so that was happening. Fine, so this was the thing, right. But lastly जब सिराजुद्दौला, he became the ruler in 1756, in April 1756, so he took some of the strenuous measures, right. इन्होंने जब से ये रूलर बने तब से लेके he was doing one thing or the other to trouble East India Company, right. He was trying his level best. There were small battles even happened, and in that every time Sirajuddaulah he won. Small things, right. जैसे for example Kasim Bazaar, there is a place in Murshidabad, there is a Murshidabad, Kasim Bazaar is where it's near Murshidabad, right, Murshidabad near Murshidabad. And Murshidabad क्या है, this is a place in Bengal, बंगाल में आप देखोगे this was a place, right. तो इसके पास में जो कासिम बाजार है वहां पे फैक्ट्री थी, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया. ठीक है, फिर कुछ देर वॉज समथिंग एल्स, राइट. फिर जो फोर्ट सेटलमेंट किया था उसको अपने अंडर में ले लिया सिराजुद्दौला, राइट. सो एवरी टाइम दे वर विनिंग, बट फाइनली व्हाट हैपेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी, they again they again came up with some solution for that. और वो solution क्या था, the solution was basically, that is to say the solution was to fight, to have a war, right. और एक final war हुई between सिराजुद्दौला and कंपनी, है ना. और इस टाइम पर कंपनी को रूल कौन कर रहा था, नॉट रूल, बेसिकली कंपनी की आर्मी को लीड कौन कर रहा था, इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव. यस, इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव. एंड बंगाल की तरफ से था सिराजुद्दौला. सो देयर वॉज फाइट बिटवीन देम in the name of battle of Plassey, right, in the battle of Plassey, right. And when did it happen, when did it take place, so 23rd June of 1757, right. So that was the thing. So what were the reasons, you may get a question like what were the reasons for the for having the battle of Plassey. So we were having what, we were having there was conflict between the Nawabs and the East India Company for non-payment of taxes and for misusing the Farman, and of course for creating disturbance by having the port settlement, right, by establishing the fort settlement part, right, by establishing fort around the settlement. Yes, right. So 3 points are there. Fine. So this led to the battle of Plassey. This led to the battle of Plassey, right, in 1757. Very important, in 1757. फाइन. अब यहाँ क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके पास ज्यादा लोग नहीं थे. They were not having very big army or something like that. No, army was small one only. Rather, Sirajuddaulah was having thousands of people, like thousands of people he was having. But still, what was the result? What was the result? The result of the war was that Nawab of Bengal, that is Sirajuddaulah, right? Sirajuddaulah, he was defeated, right? So yes, he was defeated. Why so?
he was defeated. He was having so much people with him, he was having enthusiasm every time. He just like हिंदी में बोलते हैं एक मुहावरा है, नाको चने दबाना, नाको चने चबवा देना, राइट? तो इस तरीके से उसने नाक में दम कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के. बट स्टिल व्हाट हैपेंड दैट यस, ईस्ट इंडिया कंपनी वन इन दिस बैटल. व्हाई सो? बिकॉज अगेन मतलब सीधे सीधे नहीं किया, इन्होंने अपनी उंगली टेढ़ी कर दी, राइट? सो यस, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उन्होंने उंगली टेढ़ी कर दी, राइट? और क्या किया उन्होंने? जो मीर जाफर थे, मीर जाफर कौन थे? ही वॉज द लीड, ही वॉज लाइक टेकिंग अ लीड टू वन पार्ट ऑफ द आर्मी. सिराजुद्दौला की जैसे बहुत बड़ी आर्मी थी, थाउजेंड्स, ठीक है? अब इस पूरे थाउजेंड्स को एक तो रूल कर नहीं सकता, तो ग्रुप बने हुए होते हैं. And in these groups, in one of the groups, the lead was with मीर जाफर. मीर जाफर के पास लीड थी. तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया? ब्राइब कर दिया, पैसा दे दिया कि तुम हमें ये वॉर जिता दो, हम तुम्हें नेक्स्ट नवाब बना देंगे. मीर जाफर भी हैप्पी, चलो बढ़िया, ओके, आई एम डन विद दिस थिंग, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, लेट्स डू इट, राइट? So this was the reason for the defeat of Sirajuddaulah, right? This was the reason for the defeat of Sirajuddaulah. And yes, Mir Jafar, he cheated, right? He cheated actually. He proved as a traitor. Traitor मतलब धोखेबाज दे जाना, धोखा दे जाना, ठीक है? He proved as a traitor, right, in the army of Sirajuddaulah, and because of that, in Battle of Plassey, we lost, Nawab of Bengal lost, and Britishers very first win. This was their very first to win in the history. This was their very first win, and after that they gained confidence. ठीक है? After that what they thought कि अरे अब तो हमारा रूलर है, इसको तो हमने खरीद रखा है, हमने इसको ब्राइब कर रखा है, there is corruption, isn't it? तो हमने तो उसको like we paid him in a way, we made him ruler, तो ये तो हमारी बात मानेगा, he will be obliged to us. So East India Company were thinking that way, that yes, he will be obliged to us, so he will be following our orders, तो ये हमारे orders follow करेगा, right? So yes, of course, जो मीर जाफर है, he became the ruler, right? He became the ruler on 2nd of July. देखो जून में स्टार्ट हुई थी बैटल, एक महीना चली, लाइक लेस देन 1 month, एंड मीर जाफर को नवाब बना दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया. देखो अभी तक भी क्या दिख रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल में नहीं है, पीछे पीछे से खेल रही है, कभी ब्राइब दे रही है, कभी ना इनडायरेक्ट वे में रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, रूलर को नहीं फॉलो कर रही, उन्हें चैलेंज कर रही है बार बार. कंपनी ने बार बार ऐसे ना बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में और लेटर्स एंड ना डरावने वार्निंग्स देते हुए लेटर्स भी लिखे थे नवाब्स को, राइट? तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में दे आर थ्रेटनिंग द रूल इन द कंट्री, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कमिंग इन फ्रंट एंड दे आर रूलिंग आवर कंट्री, इजंट इट, राइट? तो यहाँ पर भी मीर जाफर जो एक तरीके से उन्होंने ही उसको ऑब्लाइज करते हुए बनाया कि लाइक यू बिकम द नवाब नाउ, राइट? सो दिस हैपेंड. बट सी, मीर जाफर चाहे जो भी हो, था तो बंगाली ना, था तो इंडियन ही आफ्टर ऑल. तो अब जो भी चीज ब्रिटिशर्स बोलते, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती, इट वाज नॉट easy for him to follow every time. Every now and then he could not follow the orders, so he was not working as per the will of the Britishers. ठीक है? हमेशा नहीं कर पाता था. तो Britishers, they felt very offensive for this, they felt very offended. उन्होंने कहा अरे ये तो बात ही नहीं मानता, हटाओ इसको, निकाला उसको. एंड 1760 में मीर कासिम जो कि सन इन लॉ थे मीर जाफर के, उनको बना दिया नवाब. 1760 में बोला कि आ जाओ आप बनो नवाब. 1757 में बनाया था मीर जाफर को. एंड आफ्टर दैट इन 3 years only, like 3.5 years only approx, what happened? मीर कासिम he was made ruler by East India Company, right? ठीक है? अब लग रहा होगा नाउ इट मस्ट बी द थिंग, अरे अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही राज चलेगा, रूल चलेगा. बट अभी भी ऐसा नहीं हुआ. Still this did not happen. Why so? Because मीर कासिम भी रिवोल्ट करने लगा. He even started revolting against East India Company. Because see, भले ही कोई भी आपको oblige करे, कुछ भी करे, within your heart you are an Indian. You are belonging to your people, isn't it? आप अपने लोगों को ही belong करते हो, so you will do favor to them only, isn't it? Right? So here this thing again happened. फाइन. नाउ व्हाट हैपेंड बेसिकली, सो अब मीर कासिम जो है वो बहुत परेशान हो गया. उसने कहा अब क्या करूं क्या करूं. सो ही रैन टू, बंगाल में था, ही रैन टू पटना, पटना चला गया वहां पे,
ठीक है, पटना बिहार साइड, ही वेंट देयर, और वहां पर उसने 2 लोगों का सपोर्ट गेन किया। कौन थे वो 2 लोग? हु वर दोस 2 पीपल? सो नवाब ऑफ अवध वाज देयर, दैट इज शुजाउद्दौला, एंड मुगल एम्परर, उस टाइम पर पूरे इंडिया के जो मुगल एम्परर थे, ही वाज शाह आलम टू, राइट, शाह आलम टू। औरंगजेब वाज डाइड इन 1707, ठीक है, 1707 में ही डाइड, और उसके बाद बहुत सारे मुगल रूलर्स आए। एंड इस टाइम पर, राइट, इस टाइम लाइक 1760 ऑनवर्ड्स एंड ऑल, शाह आलम टू वाज द मुगल एम्परर। So now there are 3 people who are against East India Company. Mir Qasim, Nawab of Bengal, शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू, मुगल एम्परर। ठीक है, अब इन तीनों ने बैटल की अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये तीनों फाइट करने आ गए कि चलो आओ मैदान में, अब देखते हैं तुम्हें, आओ ईस्ट इंडिया कंपनी। बट अगेन व्हाट हैपेंड, 1764 में हैपेंड योर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई विद द कंबाइन आर्मी ऑफ हुम, बंगाल की आर्मी, अवध की आर्मी, एंड आपके जो मुगल एम्परर हैं, एमी लिख रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी आर्मी, शाह आलम टू। बट अगेन व्हाट हैपेंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली वन, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर जीत गई। एंड इस बार क्या हुआ, पहले तो सिर्फ बंगाल को ही जीते थे, दिस टाइम दे टुक द कंट्रोल ओवर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तीनों तीनों की ही जो तीनों ही रीजन्स थे, देयर दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, उनको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया by being there, right? So they got the right for this one. So they got this right of collecting revenue from the revenue मतलब टैक्स कलेक्ट करना। तो देखो अब पैसा आ रहा है, अभी भी देखो ब्रिटिशर्स को पे करना नहीं पड़ेगा, रादर दे विल बी गेटिंग मनी। और हाउ डिड दे ड्रेन्ड मनी फ्रॉम आवर कंट्री, लाइक आउट ऑफ आवर कंट्री? So see, Britishers, what they used to do, so yes, they used to tax our people। अब देखो ये 3 रीजन्स मिल गए, तो यहाँ पर टैक्स लगाया, टैक्स इम्पोज किया, सो देयर इज टैक्स इम्पोजिशन, राइट। जो टैक्स में से पैसा आया उसी से ही यहाँ के लोगों का प्रोडक्ट खरीदा, और जो प्रोडक्ट खरीदा उसको लेके जा करके दे सोल्ड इट। तो यहीं पे सब कुछ हो गया, यहीं का पैसा लिया, यहीं पे ही उसको वापस किया, और एक्स्ट्रा ही कमाया बल्कि, isn't it? प्रॉफिट में ही they were selling their products, right? So this is how they were playing the trick of maximizing their profits. So tax imposition say they bought products, right? And yes, further we will also see that what will they do, they will even compel people to grow, like to work as per to them in these respective areas। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। Fine, so they used to do like this for maximizing their profits, part। Okay, so this was the thing, so this was your battle of Buxar। ठीक है, अब battle of Buxar के बाद भी what happened, that is to say, yes, these people, अब क्योंकि वो revenue collect करने लगे थे, they had even become a kind of a ruler only, right? So after 1764 they started having the collection right कि वो tax collect कर सकते हैं, है ना, उनका ही रूल हो गया इन रिस्पेक्टिव एरियाज में। जो बिहार था वहां पर इंडिगो क्या है, इट्स अ क्रॉप, बेसिकली इट्स अ क्रॉप। आप देख सकते हो, देखो ये ब्लू कलर की, ब्लू इज इंडिगो इज अ कलर। ठीक है, तो दिस कलर इज यूज फॉर डाइंग पर्पस। डाइंग मतलब कलर को सॉरी कपड़े को डाई करते हैं ना, ठीक है, व्हाइट कपड़ा लेते हैं फिर उसको डाई करने के लिए देते हैं, आपने कभी घर पे देखा होगा, राइट? तो उसको कलर कराया जाता है। फाइन, सो हियर ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग, जो ब्रिटिशर्स थे, नाउ दे वांटेड दिस ब्लू कलर, दिस इंडिगो कलर, सो दे स्टार्टेड कंपेलिंग बिहार प्लांटेशन, लाइक बिहार फार्मर्स बेसिकली, जो यहाँ पे फार्मर्स हैं उनको इन्होंने कंपेल करना शुरू कर दिया। फॉर व्हाट, लाइक यू शुड ग्रो इंडिगो। ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट यू शुड बी ग्रोइंग इंडिगो एंड यस यू विल बी सेलिंग इट टू अस। जो भी लैंड है आपके पास, जैसे एक फार्मर है, ही इज हैविंग like say like he is having 1 meter square, like he is having 1 square kilometer, like he is having this much of like land basically, right? For example, छोटा सा land है, right? So in that also that farmer is supposed to grow indigo in like 1/3 of its part, उसको grow करना ही करना है।
ठीक है। इंडिगो से क्या होता था, जो लैंड थी इट यूज टू बिकम इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल हो जाती थी, राइट। सो यू जस्ट इमेजिन, क्या ये प्रॉफिट हुआ फार्मर को कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि उसकी लैंड खराब हो जा रही है, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स दे यूज टू कंपेल देम कि नहीं, यू हैव टू ग्रो इट, आपको ग्रो करना है, एंड यस वी विल बाय इट फ्रॉम यू, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द मनी, तो आप टैक्स भी कर पाओगे, राइट। सो दिस इज हाउ अ काइंड ऑफ लाइक अ वेग अरेंजमेंट वाज देयर, एक अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे, एक तरीके से अग्रीमेंट हुआ, फाइन। So this was the thing. So in Bihar, such kind of exploitation was happening on farmers. ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ये एक और चीज हुई यहाँ पे, ठीक है। अब देखना हम धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, हमारे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ। यस, ठीक है। एक तो तिगड़मबाजी करके ब्रिटिशर्स ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा की तरफ, वहां से दीवानी राइट्स तो मिल ही गए, दीवानी राइट्स, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू राइट्स वो तो मिल ही गए, ठीक है। दूसरी चीज, अब इन एरियाज में दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीपल, they started torturing them even to grow these crop and all. So and उनसे उनको उनको टैक्स तो देना ही पड़ता था, तो बहुत सारा टैक्स भी इम्पोज करते ही थे on farmers, on the people who are living in these respective areas, right? So such kind of pitiable conditions were there for the farmers in those regions, right? So yes, so that was the thing. इसी के साथ ही 1848 में there was again a new doctrine, doctrine मतलब एक kind of scheme, ठीक है, एक काइंड ऑफ पॉलिसी यू कैन से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में कभी आपकी रूल आ जाए, एक रूल आ जाए, रूल क्या आ जाए कि जो सुबह को 7:30 बजे स्कूल नहीं पहुंचा उसको हम स्कूल में एंट्री नहीं देंगे, ठीक है। या फिर जो सुबह को स्कूल में 7:30 नहीं रीच किया, सो ही विल नॉट बी अलाउड फॉर नेक्स्ट 1 वीक। सो दिस इज व्हाट दैट्स अ काइंड ऑफ रूल, बट इज दिस करेक्ट रूल? क्या ऐसा होना चाहिए? देयर मस्ट बी एनी जेन्युइन रीजन दैट वी कुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। सो दिस इज एक्सप्लॉइटेशन, दिस इज टॉर्चर, इजंट इट? कि ये तो बहुत ज्यादा ही, बहुत ही, आप ग्राउंड्स के चक्कर लगवा लो, आप नोट डाल दो, एनीथिंग, वार्निंग दे दो, anything, but just coming late for one, like for once or twice, not every day, for once or twice and getting such a harsh punishment, this is wrong, isn't it? Right? So similarly, doctrine क्या है? Doctrine it's a kind of rule or a kind of scheme you can say. एक rule आया, नाम क्या है इसका? लैप्स। लैप्स मतलब कोई चीज छूट गई, खत्म हो गई, राइट? द थिंग, समथिंग हैज जस्ट गॉट मिस्ड आउट, ठीक है, कोई चीज नहीं है, लाइक खत्म हो गई इन अ वे, ठीक है। सो लॉर्ड डलहाउसी, ही वाज अ ब्रिटिश ऑफिशियल एट दैट टाइम, ही वाज ब्रिटिश पर्सन एट दैट टाइम who was ruling the country as such, right? He was the head at that time and he came up with this idea of doctrine of lapse. इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, देखो उन्होंने लड़ाई करके 3 रीजन्स तो ले लिए, है ना। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, साउथ में माइसोर रीजन भी उन्होंने लड़ाई करके ले लिया था, महाराष्ट्र का मराठा वॉर करके भी उन्होंने अपने अंदर ले लिया, पंजाब का सिख वॉर करके भी दे टुक इट अंडर देयर कंट्रोल, राइट। अब वॉर्स तो दे वर डूइंग एवरीवेयर, दे वर डूइंग द वॉर्स, राइट। सो एवरीवेयर ब्रिटिशर्स दे वर डूइंग वॉर्स, ठीक है। वॉर्स चल रही थी कहाँ पे? माइसोर में भी चल रही थी, साउथ में, इन साउथ इंडिया, साउथ पार्ट, राइट, टीपू सुल्तान से, ठीक है। देन वी विल सी मराठा वॉर्स, मराठा की तरफ भी वॉर चल रही है, दैट इज टू से वेस्टर्न पार्ट, राइट, वेस्ट की तरफ, ठीक है। देन पंजाब, सिख एरिया वाज देयर, सो यस, सिख के साथ भी फाइट चल रही है पंजाब एंड ऑल, राइट। सो नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। और ईस्ट की तरफ ऑलरेडी क्या है? ईस्ट की तरफ देर इज ऑलरेडी, ओके okay, in east there is already Bengal, Odisha, Bihar, right? So these areas are already under their control, वो उनके अंडर कंट्रोल ऑलरेडी है ही सही। सो सी इन अ वे दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरीबडी, सो वॉर्स के थ्रू तो दे आर ऑलरेडी डूइंग, अब कुछ और भी होना चाहिए, सो दे थॉट क्या करना है, सो दे केम अप विद सम ऑफ द डॉक्ट्रीन्स लेकर आए, जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। अब इसमें क्या था, लाइक we know at that time we were having Indian rulers, they were ruling the different areas of the country, है ना, different rule areas को रूल कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम एक बहुत फेमस एग्जांपल देते हैं रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। सो हर एरिया वाज व्हाट? हर एरिया वाज झांसी, ठीक है। अब इससे लेट्स अंडरस्टैंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ
लैप्स। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो भी राजा है, अगर उसका अपना खुद का बेटा नहीं है, ठीक है, राजा कौन बनता था, बेटा बनता था, ठीक है। नाउ व्हाट दे सेड, ब्रिटिशर्स व्हाट दे सेड कि अगर कोई ऐसा राजा है जिसका अपना खुद का ब्लड सन नहीं है, मतलब उसका खुद का बेटा नहीं है, उसके चाचा का, उसके भाई का बेटा एंड ऑल, दैट इज वन थिंग, वो नहीं, खुद का बेटा, ठीक है, राइट, वो नहीं है, तो वो एरिया ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ठीक है, वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा इन अ वे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम क्लास में करते हैं ना कि अरे ये पेंसिल किसकी है, किसी की नहीं तो ये मेरी है, दिस इज माइन, ठीक है। वैसे नहीं करना चाहिए ऐसे, आई नो दैट यू पीपल मस्ट नॉट बी डूइंग दैट, बट यस आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अरे ये किसी का नहीं, अरे मैं ले रहा हूँ, मेरा है ये, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स दे केम अप विद दिस सोफिस्टिकेटेड आइडिया ऑफ लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि अगर राजा का खुद का बेटा नहीं है तो वो टेरिटरी, वो जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग, जो ये रानी लक्ष्मीबाई फाइट किया उन्होंने, इसीलिए फाइट किया क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का अडॉप्टेड सन था, ठीक है, उनका खुद का बेटा नहीं था, राइट। सो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज किंग, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज किंग, राइट, रानी लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे उनकी डेथ के बाद, नाउ हिज अडॉप्टेड सन ही कुड नॉट बी द रूलर बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड दैट वाज व्हाई रानी लक्ष्मीबाई शी इवन फॉट, right? So this is how you understand this meaning. So what is doctrine of lapse, you may get this question. So doctrine of lapse kya thi? So this doctrine was, sabse pehle it was introduced in the year 1848. Second point, it was introduced by Lord Dalhousie. Now what was there in this doctrine? So in doctrine of lapse, if if any king he dies without having his blood son, without having the son of his own blood, right, you may write it in that way also, like if he dies without having his own son, then that territory will automatically come under the rule of the britishers, right? So this is what your doctrine of lapse was. अब इसके लिए भी rulers बहुत fight किए, क्योंकि उस टाइम पर एक तरीके से इट वाज अ काइंड ऑफ ट्रेडिशन ओनली, और इट्स अ काइंड ऑफ कस्टम कि राजा अडॉप्ट कर लेते थे बेटे, अडॉप्ट कर लेते थे बच्चा, अगर इफ दे डू नॉट हैव देयर ओन, राइट। सो दैट वाज द थिंग, फाइन। सो मेनी रूलर्स दे फॉट, लाइक वन ऑफ द एग्जांपल इज लाइक रानी लक्ष्मीबाई, फाइन। सो दिस वाज आल्सो द थिंग। सो इसकी वजह से भी देखो, अब देखो फार्मर्स तो लड़ ही रहे हैं ब्रिटिशर्स से, क्योंकि फार्मर्स देखो, इंडिगो प्लांटेशन से हमने देखा, लाइक द फार्मर्स दे वर ऑलरेडी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वन पार्ट ऑफ द कंट्री, सो वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी दे वर ऑलरेडी अगेंस्ट ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी। राजा लोग इसकी वजह से अगेंस्ट हो रखे थे, ठीक है, इस वाली चीज की वजह से अगेंस्ट हो रखे थे, ठीक है। जो मुगल एम्परर है उस टाइम पर कौन थे, बहादुर शाह जफर, राइट। तो बहादुर शाह जफर जो है उनका भी प्रॉपर रूल नहीं चल पा रहा, तो ही वाज आल्सो इवन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। लेट मी टेल यू मोर, है ना, और कैसे कैसे जो लोग हैं देवर अगेंस्ट, सी हाई लैंड रेवेन्यू, सो लोग ऑलरेडी परेशान थे इन चीजों की वजह से कि अरे इतना टैक्स पे करना है, कैसे पे करेंगे, हाउ हाउ कैन वी पे। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है लाइक जैसे लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स, डिफरेंट अदर रिसोर्सेज एंड ऑल, उनको भी ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए देवर जस्ट यूजिंग, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, लेट मी टेल यू, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली, राइट, क्योंकि उन्हें टिम्बर चाहिए था, फॉरेस्ट कट करके वहां से टिम्बर यूज करते थे वो लोग, सो दे वर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। सो नाउ सी दीज वर द रीजंस, राइट, दीज वर द रीजंस, ठीक है, जो कि फाइनली क्या बनेंगे, दे विल बिकम द रीजन फॉर हैविंग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसी के साथ इंडिया क्या जो नॉर्मल रूल चल रहा था, लाइक इंडिया में जो भी ट्रेडिशंस कस्टम्स चल रहे थे, सती प्रथा है या फिर एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, सो ब्रिटिशर्स देवर इंटरफेयरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ब्रिटिशर्स हर चीज में इंटरफेयर कर रहे थे, देवर इंटरफेयरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, हर जगह इंटरफेयर कर रहे थे, एंड देवर चेंजिंग इट ऑल्सो। तो लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। यू जस्ट इमेजिन इन एट योर होम, द पीपल, द गेस्ट, they come and they change your living style, like they make you eat what they want to eat, they make you do what they want to do. How will you feel at that time? कैसा लगेगा उस वक्त कि आपको लोग आकर के क्या कर रहे हैं, they were making you do the stuff that they are liking,
right? So similarly, the people in our country, the Britishers, they entered our country and they used our resources for their own personal gains. They entered into our rulers rule, हमारे जो राजा लोग थे वहां उन्होंने एंटर किया. They exploited the lives of our farmers, farmers की लाइफ को एक्सप्लॉइट किया. हमारे जो पीपल थे लाइक बिजनेसमैन एंड ऑल, दे डिस्टर्ब देयर बिजनेसेस आल्सो, right? So everyone was just against Britishers, they were just against Britishers. Fine. So that was the thing. And all these things, right, all these things, it led to the revolt of 1857. 1757 में फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी हुई जहां पर ब्रिटिशर्स सबसे पहले जीते. एंड आफ्टर 100 years you can see 1857 में अगेन देयर वाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है. एंड इसका जो बहुत सारे रीजंस तो चल ही रहे थे, लेकिन एक ना बहुत कड़क चिंगारी लगी, लाइक दैट वाज व्हाट, दैट वाज योर सिपॉय म्यूटिनी. ठीक है. सिपॉय म्यूटिनी क्या है? एक सिपाही ने म्यूटिनी कर दी. एक म्यूटिनी मतलब क्या होता है? म्यूटिनी मीन्स जो आर्मी पीपल है, राइट, जो आर्मी है वहां के ऑफिशियल्स या जो सोल्जर है, दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ देयर मास्टर्स. वो ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे, दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, राइट. सो हियर व्हाट वी हैव, मंगल पांडे. जो मंगल पांडे थे उन्होंने एक ऑर्डर फॉलो करने से मना कर दिया, एंड दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट. ठीक है. दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट. व्हाई सो? बिकॉज सी what happened, Britishers they introduced Enfield rifle. एक उन्होंने राइफल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया. उसमें क्या था, जो कार्ट्रिज, कार्ट्रिज मतलब गोली, जो गोली है ना वो कैसे उसमें डालते थे, देयर इज अ गोली लाइक दिस इज कार्ट्रिज, उसको मुंह से ओपन करना है, राइफल को खोलना है, लोड करना है, बंद करना है एंड ढन 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 करना है. ठीक है. सो दैट वाज द प्रोसीजर फॉर यूजिंग दिस एनफील्ड राइफल, जिसकी कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता था, बट उसका जो ग्रीस किया हुआ था, लाइक उसको जो पैक किया हुआ था कार्ट्रिज को, इट वाज विथ एनिमल फैट. और ये एनिमल फैट, पिग फैट एंड काउ फैट, लाइक इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ. हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं था. अब किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, बट मंगल पांडे सेड नो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, राइट. सो ही आउटराइटली डिक्लाइंड, ही सेड नो टू दीज कार्ट्रिजेस. एंड यहाँ पे फाइट हो गया, ब्रिटिशर्स कंपेल्ड, ही सेड नो एंड देयर वाज टसल, देयर वाज फाइट बिटवीन देम. फाइट हुआ. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स इंडियंस भी कूद गए, अरे हमारे भाई को मारा, हमारे भाई को मारा, चलो अभी बताते हैं. तो वो भी लड़ने लग गए. ब्रिटिशर्स भी आ गए, अरे you killed us, you like you did to us and all that. So they even fighted, right? So they even were fighting for this part. So there was mutiny happened there, right? So mutiny, it happened like Meerut. Meerut was the place. ठीक है. Meerut was the place where this mutiny happened. ठीक है. So this mutiny happened in Meerut because of this Mangal Pandey and वहाँ के जो सिपाही, basically सिपाही is what it is, सिपाही. ठीक है. इंग्लिश एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट में इट्स लाइक सिपॉय, राइट. सो यस, सो दिस इज द थिंग. सो दिस हैपेंड. सो दिस वाज द इमीडिएट कॉज. समटाइम्स यू गेट क्वेश्चन डायरेक्टली आल्सो, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, immediate cause for the revolt of 1857. So this was the immediate cause, Sepoy mutiny. Sepoy mutiny, first point, the Enfield rifle was introduced. In Enfield rifle there were cartridges to be used which were greased with animal fat, right? And this animal fat was not acceptable both by Hindus and Muslims. Okay. Next is what, Britishers compelled the soldiers to use this Enfield rifle with these cartridges. Mangal Pandey outrightly declined, no, we are not going to use it. He outrightly declined, and this led to the Sepoy mutiny at Meerut. This led to Sepoy mutiny at Meerut in 1857, in March 1857. Fine. So this was the thing that happened. और जब ये चीज, अब लड़ाई तो कर ली, इंडियन सोल्जर्स जीत गए थे वहां पे. लेट मी टेल यू, वो जो आर्मी का पूरा एरिया था वहां पे ब्रिटिश सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, ने बहुत फाइट, इंडियंस जीत गए थे और ब्रिटिशर्स को भगा दिया. ठीक है. अब सोचा कि अब क्या करें, तो दे रैन फ्रॉम देयर. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिस इज योर मेरठ, दिस इज मेरठ, मेरठ से वो भागते हुए पहले गए दिल्ली.
पूरी रात they like did horse riding and they went to Delhi. Why did they went to Delhi? बहादुर शाह जफर को कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि आप बोलो हम लड़ेंगे, आप बोलो, लाइक यू जस्ट कमांड अस एंड वी विल फाइट, जस्ट लीड अस इन दिस वॉर एंड वी वांट दिस ब्रिटिशर्स टू आउट ऑफ आवर कंट्री, राइट. सो दिल्ली पहुंचे. ठीक है, दिल्ली के बाद धीरे धीरे ये आप देखोगे इट लाइक बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आरा, राइट. सो वेरियस प्लेसेस ये जो पूरा मूवमेंट है इट स्प्रेड, राइट. So starting from Meerut, it expanded to Barakpur. Barakpur is also there, right? Then we have what? Then we have Delhi in West Bengal, right? So yes, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gwalior, Ara, Faizabad, right? So it spread to all of this particular region. यहाँ पे ये पूरा फैल गया एक तरीके से. That's why it is called as War of Independence, First War of Independence, right? So it was called as First War of Independence, right? बट यस ऑफ कोर्स कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इस रिवोल्ट का भी 1857 का. द पावर टू गवर्न इंडिया इट पास फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन 1858. पूरे एक साल तक ये पूरा रिवोल्ट चला. एंड यस, दिस रिवोल्ट हैज रियली शेकन द रूट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑल्सो, राइट. ऑफ कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइंड. द रूल ऑफ, लेट्स राइट इट लाइक दिस, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन. ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन, जो इसका रूल है वो डिक्लाइन कर गया. एंड यस, देयर वाज राइज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट. देयर वाज राइज ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इट केम टू पावर, राइट. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इट केम टू पावर, राइट. सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस. रीजन क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो हारी, like they like British Parliament came into existence, but yes, still we did not got the complete freedom from Britishers. So in a way it was a failure only, isn't it? Why so? Because see, हमारी तरफ से क्या था, आर्म्स एंड अम्यूनेशन, मतलब जो हमारी गन्स थी या हम जो भी वेपन्स यूज कर रहे थे, दे वर नॉट मॉडर्नाइज, वो मॉडर्न नहीं थे. वी वर यूजिंग द प्रिमिटिव मेथड्स ओनली, वो तलवार, भाले, और वी वर यूजिंग दैट ओनली. सो दैट वाज द थिंग. यूनिटी नहीं थी, सब लोग एक नहीं थे, कोई लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई ज्यादा लड़ रहा है, कोई कम लड़ रहा है. सो देर वॉज नो यूनिटी, देर वॉज नो लीडरशिप ऑल्सो, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी. देर वॉज नो गुड लीडरशिप ऑल्सो, एक प्रॉपर लीडरशिप भी नहीं थी. These were the reasons because of which the revolt of 1857 it was not a success as such, वो सक्सेस नहीं हो पाया. बट स्टिल एक चीज ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, राइट. ईस्ट इंडिया कंपनी इट वेंट आउट, वो चली गई बेसिकली, राइट. सो दिस इज द थिंग दैट हैपेंड. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट योर, दैट इज टू से अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री एंड टिल द like 1858, है ना. तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट जो है वी कवर्ड दिस पार्ट, राइट. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वी कवर्ड दिस वन, ओके, राइट. सो सी 1667 में फरमान मिल गया था, है ना. 1600 में आए, 1608 में सूरत पोर्ट पर पहुंच गए, 1651 में हुगली, नियर रिवर हुगली, बंगाल में स्टैब्लिश की, 1667 में फरमान मिल गया. 1696 में फोर्ट स्टैब्लिश करने गए थे, लाइक नियर द सेटलमेंट, राइट. दैट इज टू से जहाँ फैक्ट्री थी उसके आसपास वो एक फोर्ट स्टैब्लिश करने लग गए थे, राइट, अराउंड द सेटलमेंट. देन व्हाट हैपेंड, राइट. ओके, सो यस 1757 में देयर वाज बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है. इससे बीच में हमने क्या देखा था, लाइक देयर वाज टसल बिटवीन नवाब्स एंड योर ब्रिटिशर्स, राइट. यहाँ पे देयर वाज रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी, राइट. रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला की आर्मी, ठीक है. सिराजुद्दौला फ्रॉम ऑफ बंगाल नवाब, सो ही केम इनटू एग्जिस्टेंस, नो नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइक ही फॉट द वॉर, राइट. ही फॉट द वॉर, सिराजुद्दौला, ठीक है, राइट. 1760 में मीर कासिम बिकेम द नवाब, ठीक है. इसके बाद ही हु बिकेम द रूलर, मीर जाफर. मीर जाफर was the ruler, was the नवाब, and he was ruler till 1760. फिर आपके बाद गए मीर कासिम, सन इन लॉ थे आपके मीर जाफर के, but he was even against the Britishers.
So finally 1764 में Battle of Buxar happened between English, that is to say East India Company, and three rulers, that is to say Nawab of Bengal, that is to say Nawab of Bengal कौन थे? He was Mir Qasim. Then Nawab of Awadh, Shujaud-Dawla, Nawab of Awadh, Shujaud-Dawla, and Shah Alam II, right? Mughal emperor, right? Shah Alam II. रिजल्ट क्या हुआ लेकिन फिर भी we lost. Whereas East India Company, they won the Diwani rights, the revenue collection rights of Bihar, Bengal and Odisha, right? So yes, so they got these 1765 में, yes they got the Diwani rights. ठीक है, 1857 में इसी बीच में there were so many things happened, wars happened. wars कौन कौन सी? मैसूर की वॉर, ठीक है, मराठा वॉर, मराठा की वॉर, ठीक है, सिख्स के साथ वॉर, सिख पीपल पंजाब एरिया, दैट वॉर हैपेंड. Then what happened? Indigo plantation. That torture happened to the farmers of Bihar. So indigo plantation, right? Then what happened? There was doctrine of lapse in 1848. There was doctrine of lapse introduced, which again did what? Doctrine of lapse, जिसकी वजह से फिर जो monarchs थे, they were very much against the East India Company. ठीक है, फिर they even tried to interfere with the Indian customs, जो Indian customs हैं, sati system and all. So yes, they interfered, like East India Company interfere there, right? So these things were happening, and because of this, what happened? Revolt of 1857. And immediate cause was what? Immediate cause was your Sepoy mutiny. ठीक है, मंगल पांडे नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है, दैट इज टू से योर मंगल पांडे. ठीक है, आमिर खान की एक बहुत बढ़िया मूवी भी है, दैट इज योर मंगल पांडे. ठीक है, फाइनली 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉल, बट इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट? सो दिस इज अबाउट होल योर थिंग. ठीक है, नाउ वी आर लाइक व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट टू सी ड्यूरिंग दिस टाइम. आई टोल्ड यू क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट वन आर लाइक रीजंस क्या है रिवोल्ट ऑफ 1857 के, कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो हर बैटल है उसका रीजन क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, हु फॉट दैट वॉर एंड व्हेन डिड दैट वॉर हैपेंड. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, यही क्वेश्चंस ही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ऑल इसमें भी आएंगे. ठीक है, सो दिस इज all about this part. Okay, so yes, with this let's just go quickly to the quiz part. Okay, so yes, okay, and let me here tell you one more thing कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्राउन जो आया, बेसिकली उस टाइम पर रानी कौन थी वहां की? इट वॉज योर क्वीन विक्टोरिया, राइट? सो इट वॉज योर क्वीन विक्टोरिया. सो बेसिकली यू विल सी, दैट इज टू से, चलो एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. यस, सो दैट इज टू से परमिशन किसने दी थी? क्वीन एलिजाबेथ वन ने. बट एट द एंड 1858 के एंड में हु बिकेम द रूलर, लाइक हु केम एज द रूलर? सो क्वीन विक्टोरिया इट वाज, राइट? Okay, so yes, okay, let's just try to answer this one. Fine. The consequence of the revolt of 1857 was what? Consequence क्या आया? Fall of monarchy, rise of monarchy, return of Mughal rule or fall of East India Company, right? So fall of East India Company. Okay, so yes, 10 seconds, right? 10 seconds, 10 seconds for this. 9, 10, 5 more seconds to go. Okay, so yes, so 15 seconds. So see, revolt of 1857, what happened? Monarchy is like king's rule, so did that fall? No. Rise of monarchy? No. Return of Mughal rule? No. But yes, fall of East India Company, right? So yes, there was fall of East India Company happened, right? Okay, let's do one more question. Okay, so Queen Victoria was crowned Empress or Queen of India in which year? 1866, 1897, 1858 or 1888? So yes, 10 seconds now. Okay, so yes, which was the year? Which was the year? When was the battle was over?
Okay, so yes, of course, it's your 1858, right? It was your 1858 part. Okay, so yes, so she became the empress at that time. Okay, let's do one more thing. Okay, okay, so yes, tell me, Dash was the chief, Dash was the chief of army of Sirajuddaulah. Who was that one person who was like chief, who was the leader of one part? Recall that name. Mir Qasim, Shah Alam to Mir Zafar, or Aurangzeb, right? So yes, okay, okay. So yes, you can answer. I hope that you people must have answered. So yes, it's your Mir Zafar, right? So Mir Zafar was the person. Fine. I hope the various questions are very much clear to you, right? And yes, the topic is very much clear to you. If still there is any doubt or something, you can write in the comment section below, right? So yes, okay, so this is about in this part. Okay, so yes, thank you so much, students. Thank you so much. We'll be completing its next part, like that is to say, we look about its Indian national movement in next video. Bye bye, everyone. Take care. Thank you so much. Thank you so much. All the very best.